قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ سورہ کہف آیت نمبر 14۔ محترم حضرات، دیکھیے یہ سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ میں آج کی اس نشست میں نوجوانوں کی اہمیت اور زندگی کا مقصد، اس سے متعلق انشاءاللہ بہت مختصر ایک درس رکھنا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہے کہ باغوش دل سماعت فرماویں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی عمر کے لوگوں کو نوجوان کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ اسی میں بچپن اور لڑکپن کا دور بھی شامل ہے۔ اور ورلڈ پاپولیشن اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں 50% آبادی 25 سال سے نیچے کی عمر پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کی آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ نے سن لیا کہ نوجوان کتنی عمر کے بچوں کو، لڑکوں کو کہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ گئے۔ آپ نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھیے کہ قوت و صلاحیت و حوصلہ و امنگ و جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزل اور عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں نوجوانوں کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ نوجوان دقیانوس، جو جابر و ظالم حکمراں تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کے خلاف ایک پاک پروردگار کے بارے میں کہہ دیا کہ جابر و ظالم حکمراں، تم ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور سنو، ہم اس ایک معبود برحق کو چھوڑ کر کے کسی کو کبھی اپنی مدد کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم پکار نہیں سکتے ہیں۔ یقین مانو، اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو یہ ایک بہت بڑی بیجا اور غلط بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوانوں کی ہمت دیکھیے، وہ بوڑھے اور بزرگوں کی بات اس میں نہیں آتی ہے، نوجوانوں کی بات آ رہی ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنے زمانے میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے کہ آج کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اسی طرح جب کبھی شریعت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف کوئی اگر سر اٹھائے تو اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کیا کرے؟ وہ کھڑے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ بھروسہ کر کے ان کی دفاع کرنے کی، اس سے پنگا لینے کی، اس کی مخالفت کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے۔ دیکھیے دوسری جگہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے
मूसा अलैहिस्सलाम पर जिन चंद नौजवानों ने ईमान लाया था उनका भी इसी तरह जिक्र फरमाया, फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही अला खौफिन मिन फिरऔन व मलाइहिम अन यफ्तनहुम व इन्न फिरऔन लआलिन फिल अर्ज़। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 10 है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ ज़ुर्रियत ने ईमान लाया है जो मूसा की कौम में से थे। ये ज़ुर्रियत का माना क्या है? नौजवान के माना में है कि वो नौजवान थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए हैं। हाँ, जो फिरौन से डर करके, फिरौन के कौमों से डर करके कि वो लोग उनके ऊपर जुल्म और सितम ना करे, फितना में उनको ना डाले, इन तमाम चीजों पर डरते हुए भी क्या क्या उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा पर ईमान लाने वाले लोगों में किन लोगों का तज़किरा फरमाया? नौजवानों का। उसमें नौजवान लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन माओं ने ईमान नहीं लाया, बापों ने ईमान नहीं लाया, बड़ों का जिक्र नहीं हो रहा है कि जो लोग बड़े थे वो लोग ईमान लाए, ऐसा नहीं। इसलिए कि जो लोग बड़े होते हैं उन पर मसलहत परस्ती, दुनियावी अगराज की बंदगी और आफियत कोशी कुछ इस तरह छाई रहती है कि हक पर उनको आमादा होने वो नहीं देती। वो हक से क्या करते हैं, बहुत तरह की उन्हें प्रॉब्लम समझ में आती है। लेकिन जो नौजवान होते हैं, जो जवानी के दहलेज में होते, मरहले में होते हैं, वो उन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। इससे हमारे माँ बाप को, मौजूदा दौर के नौजवानों को ये सबक हासिल होना चाहिए कि क्या करें, वो अपने बूढ़े और बुजुर्गों को ना देख करके जब हक का मामला आ जाए तो वो डंके के चोट मैदान में उतर आए, मैदान में निकल आए। लेकिन सद अफसोस कि आज मौजूदा दौर में हमारे नौजवान जितने भी लड़के बच्चे होते हैं, इनको दुनिया की तमाम तरह के उलझनों में फंसा दिया जाता है, इनको डाल दिया जाता है। अभी इनके अंदर सही से जवानी नहीं आती है, माँ बाप शादी ब्याह की उलझन में उनको फंसा देते हैं और फिर शादी ब्याह हो जाने के बाद घरेलू उलझन में माँ बाप के साथ उनका अच्छा बर्ताव होता है या नहीं होता है। इन तमाम चीजों में हमारे बच्चे जो हैं इनको समझ में नहीं आती है कि हमको शरीयत क्या चीज है, कुरान क्या कहता है और हक क्या है, बातिल क्या है, इनको समझने से दूर रखा जाता है। इनको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। अपनी जिंदगी का मकसद ही वो खो बैठता है कि मैं दुनिया में क्यों आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे क्यों पैदा फरमाया। इनको ये बात समझ में ही नहीं आती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हमको आपको इन चीजों के बारे में गौर करने की जरूरत है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी का हम मकसद समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दुनिया में क्यों भेजा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी उम्र जो है नौजवानी की जो होती है वो 15 से लेकर के 25 साल के उम्र के दरमियानी की उम्र है। और ये नौजवानी की उम्र ये बहुत अहम उम्र होती है। हदीस में आता है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़यामा मिन इंद रब्बिही। अपने परवरदिगार के पास जब आदम की औलाद खड़े होंगे क़यामत के दिन तो उनके पांव टस से मस नहीं करेंगे जब तक कि उनसे 5 चीजों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। अन उम्र ही फीमा अफना हो, एक उम्र के बारे में आता है कि उनकी उम्र किस चीज में फना हुई है, उनकी जवानी किस में खत्म हुई है और उन्होंने माल कहाँ से हासिल किया है और किन चीजों में अपना माल खर्चा किया है। और उसी तरह से व माजा अमला फीमा अलिमा, जो कुछ उसने इल्म हासिल किया है, कहाँ उस पर कितना अमल किया है। इसमें देखिए कि 4 चीजें तो ऐसी है जो सिर्फ नौजवानी की उम्र के ताल्लुक से है।
उम्र है, नौजवानी है, और उन नौजवानी के आलम में उनको एक तरह से माल कमाने की फिक्र होती है, तो उनको एहसास दिलाया जाता है कि तुम माल कहाँ से कमा रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो, फजूल खर्ची में, शराब नोशी में, जुआबाजी के जरिए से, या उसी तरह से लॉटरी के जरिए से किस तरह से तुम माल कमाते हो। इन तमाम चीजों के बारे में उन्हीं नौजवानों को इशारा किया गया, टारगेट बना गया है। हमारे आज माँ बाप इन चीजों में भी काफी सुस्ती बरतते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, अभी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन तारीख बताती है, तारीख, आप तारीख का मुताला कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में, 25 साल से पहले की उम्र में हमारे पिछले नौजवानों ने कितने बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिए हैं, आपको तारीख का मुताला करने से पता चलेगा। देखिए, मैं आपको 2-4 बतौर नमूना मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ। उंदुलुस का फातेह, जिसने उंदुलुस स्पेन को फतह किसने किया था, उनका नाम है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल। उनकी उम्र कितनी थी जब उन्होंने उंदुलुस को फतह किया? तारीख बताती है कि 21 साल की उम्र थी उनकी। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल की उम्र कितनी थी? 21 साल थी। कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाला मुहम्मद अल-फातेह है, वो कितने साल की उम्र में फतह किया था? 22 साल की उम्र में। मुसलमानों की उस लश्कर को का सिपा सलार जिसमें अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत मौजूद थे, किसको सिपा सलार बनाया था अल्लाह के नबी ने? उसामा बिन ज़ैद को। उनकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। सिंध का फतह करने वाले का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, उनकी उम्र कितनी थी? कभी आपने मुताला करने की कोशिश की? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध का फतह किया उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जिसने इस्लाम में पहला तीर चलाया था उनका नाम साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी भी उम्र 17 साल थी। जिसने अपने घर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में वक्फ किया था, अरकम इब्ने अरकम है। उनकी उम्र कितनी थी? बोलो, 16 साल की उम्र थी। इस्लाम में सबसे ज्यादा अकरम शख्सियत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी उम्र कितनी है? 16 साल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम में तलवार चलाई है, जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी उम्र कितनी थी मालूम है? 15 साल की उम्र थी। मैंने आपको बताया कि 15 से 25 साल के दरमियानी उम्र को ये नौजवान होने की उम्र बताई जाती है, और इन 15 से 25 साल के अंदर अंदर हमारे नौजवानों का कारनामा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक उसी तरह से इस उम्मत के फिरऔन को वासिले जहन्नम करने वाले मुआज़ इब्नुल जमुह है, उनकी उम्र कितनी थी? 13 साल थी। मुआविज इब्ने अफरा, उनकी उम्र कितनी थी? 14 साल थी, जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था। बोलो, वही को लिखने वाले की उम्र कितनी थी? 17 साल थी। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला उनका नाम आता है कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूद की ज़बान को सीख लिया था, और अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल होती थी वो लिखना शुरू कर दिए थे। कितनी साल की उम्र बताई जा रही है? बोलो, 13 साल की उम्र। अल्लाहु अकबर। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का वाली बनाकर गज़वा के लिए तशरीफ ले गए, इताब ने उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी उम्र कितनी थी? 18 साल है। मेरे भाइयों, देखिए कि इतनी कम उम्र में हमारे नौजवान ने कितने बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिए हैं, और आज हमारे 15 से 25 साल के उम्र के नौजवानों को देखिए तो इनको तरह तरह के उलझनों में माँ बाप की तरफ से या तो उनको डाल दिया जाता है, या नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को समझ नहीं पाते हैं कि हम जो है क्यों दुनिया में आए हैं, क्यों हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, पैदा किया है। इस मकसद से बिल्कुल वो क्या है, ना बलद है, ना आशना है। बल्कि अगर सैकड़ों नौजवानों को अगर लाइन में खड़ा करके उनसे पूछा जाए कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद बताओ कि दुनिया में तुम क्यों आए हो, तो उनका जवाब सिर्फ इतना हो सकता है कि जिंदगी का भी कोई मकसद है क्या?
یہ تو زندگی کا مقصد صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بس اپنا محنت مزدوری کرو اور ترقی کرو، مکان بناؤ، گاڑی گھوڑا کرو اور عیش و آرام کے ساتھ رہو، اسی کو وہ زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں۔ اسلام میں کیا ہو رہا ہے، شریعت میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے عبادات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، صحیح نقطۂ نظر پر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، دینی تعلیم میں سے کوئی حصہ ہم کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ان چیزوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، میں نوجوانوں کو اس بات کا پیغام اور میسج بڑے مخلصانہ اور عاجزانہ انداز میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو ٹارگٹ لے کے اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج کتنے نوجوان ہمارے اللہ کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں؟ بولو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہم نے نمونے اس درس میں پیش کیے ہیں اس پر وہ غور و فکر کر کے اپنا بھی ایک آئیڈیل آنے والی نسل کے لیے چھوڑ سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔